Good management is the art of making problems so interesting and their solutions so constructive that everyone wants to work and deal with them. Namaskar. Welcome to my YouTube channel Business Bang. By the end of this video, you would be able to learn the concept of principles of management and their nature. Guys, as you already learned that management is an age-old concept, the theory of management has evolved over a period of time and became a discipline, that is, a complete subject for studies. Now, coming to the mainstream, do you know what is the meaning of principles? Guys, there are three closely related terms: principles, values, and techniques. Suppose Mr. X is at a managerial position in production department of Maggie. For giving instructions to the employees, he will need to follow some principles, keeping in mind the values of organization, and lay down few techniques of production. What we mean by principles is a set of guidelines to perform a work, or we can say principles are the norms of behavior. मैगी के सीईओ ने मीटिंग में पूछा कि सेल्स जिस रेट पे इंक्रीज हो रही हैं, प्रॉफिट क्यों इतना इंक्रीज नहीं हो रहा? तो मिस्टर एक्स ने बोला कि सर, पर यूनिट की कॉस्ट इंक्रीज होती जा रही है, सप्लायर्स ने रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ा दी है और पुरानी लेबर कुछ इंक्रीमेंट डिमांड कर रही है। यहाँ देखते हैं मिस्टर एक्स के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। वो चीप रॉ मटेरियल्स का यूज़ करके क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, करंटली वर्किंग लेबर की जगह चीप लेबर ढूंढ सकते हैं, प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज कर सकते हैं, एट्सेट्रा। बट क्योंकि कंपनी की कुछ वैल्यूज़ हैं, जैसे गुड क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, तो उन्होंने प्राइस इंक्रीज करने का नॉर्म अडॉप्ट किया। प्राइस इंक्रीज करना एक गाइडलाइन ही तो थी प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए, कोई कंपल्शन तो थी नहीं, बट अपनी वैल्यूज़ को ध्यान रखते हुए उन्होंने ये गाइडलाइन फॉलो की। तो वी सी दैट प्रिंसिपल्स भी वैल्यू से ही इमर्ज होते हैं। तो मतलब वैल्यू एक बड़ी टर्म है एज कंपेयर टू प्रिंसिपल्स। डेडिकेशन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, क्लीनलीनेस, कंफर्टेबल वर्क प्लेस, ये सब वैल्यूज़ के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एक और टर्म है विद विच पीपल कंफ्यूज प्रिंसिपल्स, दैट इज टेक्निक। टेक्निक्स आर द मेथड्स और स्टेप्स टू परफॉर्म अ वर्क। दे आर साइंटिफिक इन नेचर, मीन्स टेक्निक को एज इट इज़ फॉलो करना पड़ता है। लाइक मैगी मैन्युफैक्चर करने का जो प्रोडक्शन मेथड है, उसमें तो एम्प्लॉयज़ कुछ चेंजेस नहीं कर पाएंगे। लाइक जब कोई नया कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है तो नींव रखने की भी एक टेक्निक होती है। नाउ आफ्टर नोइंग द डिफरेंस इन प्रिंसिपल्स, वैल्यूज एंड टेक्निक्स, लेट्स नो व्हाट द टर्म प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सिग्निफाई. Principles of management are those guidelines which assist a manager to effectively manage the organization. A manager can apply these principles in his life to better handle the people under him. This gives rise to another question: what is the nature of these principles? Are they like science, in which things are rigid and universal, or is it an art, the use of which depends upon one's own creativity? Well, we have already studied that management is purely an art but an inexact science. So the principles of management also have the characteristics of both. Let us examine each of its features one by one. Universal applicability. Guys, if you remember, हमने previous chapter में एक term पढ़ी थी pervasive. Yup, you got it right. It means existing everywhere. क्योंकि मैनेजमेंट तो सब जगह ही अप्लाई होता है, whether it is a business concern, a school, hospital, home, whatever place it may be, management is present everywhere. Similarly, these principles are also universally applicable. They can be applied everywhere. But यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि principles universally valid नहीं होते. It means ऐसा नहीं है कि अगर किसी मैनेजमेंट प्रिंसिपल को फॉलो करने से एक स्कूल में अच्छा रिजल्ट आ गया तो एक हॉस्पिटल में भी उस प्रिंसिपल से अच्छा ही रिजल्ट आएगा। एग्जाम्पल, एक मैनेजमेंट प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क, जिसके अकॉर्डिंग एक लार्ज टास्क को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देना चाहिए और हर एक स्मॉल टास्क को कंप्लीट करने के लिए अलग इंडिविजुअल्स होंगे। तो लाइक ये प्रिंसिपल एक कॉल सेंटर में अप्लाई हो सकता है, जहाँ दिन के हज़ारों कॉल्स करने होते हैं। बट एक छोटी किराना शॉप में तो ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं हो सकता। वो दाल सेल करने के लिए, चावल सेल करने के लिए अलग अलग एम्प्लॉयज से नहीं रखेगा। बट हाँ, वहाँ कोई दूसरा प्रिंसिपल जरूर अप्लाई हो सकता है, लाइक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, जिसके अकॉर्डिंग हर चीज़ रखने के लिए एक पर्टिकुलर जगह हो। Thus, we see that principles of management are applied everywhere.
जनरल गाइडलाइंस। इस फीचर के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बस कुछ जनरल गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं जिसका यूज करके बिजनेस में प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है, बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू अप्लाई ऑल दीज प्रिंसिपल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट बहुत डायनेमिक होता है। आज जो सर्कमस्टेंसेज हैं इट्स नॉट नेसेसरी वो कल तक सेम हो। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर मैनेजर ने कोई प्रिंसिपल अप्लाई किया हुआ है तो उसका यूज़ वैलिड रहेगा हमेशा। ये प्रिंसिपल तो बस उनकी हेल्प के लिए हैं, बाकी उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कि किस हद तक वो इन प्रिंसिपल्स का यूज़ करते हैं। बट येस, इफ समवन अंडर एस्टिमेट्स दिस प्रिंसिपल्स इट कैन बी अ ह्यूज मिस्टेक। ऑल्दो ये प्रिंसिपल्स किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन ना दे पाएं, बट छोटी छोटी प्रॉब्लम्स का भी अगर सोल्यूशन ढूंढ ले मैनेजर्स तो बड़ी प्रॉब्लम भी छोटी लग सकती है। Formed by practice and experimentations. Students, the principles of management have evolved over many years of experience by great managers like Taylor and Fayol. इन प्रिंसिपल्स को फ्रेम करने के लिए उनकी सालों की ऑब्जर्वेशन और पर्सनल स्किल्स यूज हुई हैं, जिसे मॉडर्न मैनेजमेंट स्टडीज़ में एक बूम बोलें तो गलत नहीं होगा। These great personalities have explored the principles comprehensively and suggested to follow them for successful management. For example, it is a proven fact that discipline principle needs to be followed to achieve any goal. Flexible. As we discussed earlier, principles are guidelines and not rigid prescriptions to problems. They shall be modified by the managers according to the situation. किसी भी प्रिंसिपल को अप्लाई करने के लिए कोई फिक्स मेथड नहीं है, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन्हें यूज़ किया जा सकता है। Mainly behavioral. Since management deals mainly with human beings and nature of humans differ from one person to another, thus principles of management are behavioral. किसी पर्टिकुलर प्रिंसिपल का इफेक्ट हर पर्सन पे डिफरेंट हो सकता है। The outcomes of principles are different according to the discretion of persons involved. प्रिंसिपल्स की वजह से ना ऑर्गेनाइजेशन में मैन एंड मटेरियल रिसोर्सेज में भी रिलेशन इस्टेब्लिश हो सकता है। एग्जाम्पल, ऑर्डर प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए मैनेजर्स लेआउट्स बनाते हैं किसी प्रोडक्शन यूनिट का, किसी डिपार्टमेंटल स्टोर का, एटसेट्रा। कंटिंजेंट। कंटिंजेंट बेसिकली मीन्स समथिंग डिपेंडिंग अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट। मतलब जब किसी एक चीज़ की प्रेजेंस किसी दूसरी चीज़ के होने या ना होने पर डिपेंड करती है तो उस चीज़ को कंटिंजेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल, दिस वर्ड इज़ वेरी कॉमनली यूज इन इंश्योरेंस। हम जैसे लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं तो कंपनी हमारे बीच क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कंपनी और हमारे बीच क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, यही कि अगर कल हमें कुछ हो जाए तो हमारे नॉमिनी को उस इंश्योरेंस का क्लेम मिल जाएगा। बट वो क्लेम मिलना डिपेंड करता है ना कि किस वजह से डेथ हुई। जो रीज़न पॉलिसी में स्टेटेड थे अगर उसी की वजह से डेथ हुई है तब तो मिल जाएगा क्लेम, अदरवाइज नहीं मिलेगा। सिमिलरली प्रिंसिपल्स भी कंटिंजेंट होते हैं, मीन्स if the application of a principle will depend upon the happening of a particular situation. Example, principles of equity वहीं तो अप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी ना जहां डाइवर्स इंडिविजुअल्स हों बिलोंगिंग टू डिफरेंट बैकग्राउंड्स। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स। ये इमेज देखो, इसने अम्ब्रेला क्यों लिया हुआ है? बिकॉज इट्स रेनिंग। सिमिलरली हर काम करने का एक रीज़न होता है, इसे कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। इस एग्जाम्पल पे बारिश होना एक कॉज था, अम्ब्रेला यूज करना उसका इफेक्ट था। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं। वी विल यूज अ प्रिंसिपल ओनली इफ इट इज रिक्वायर्ड एनीवेयर एंड नॉट विदाउट एनी रीजन। एग्जाम्पल, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क वुड बी रिक्वायर्ड when the organization is large and involves multiple activities.